Good afternoon, all of you. Today we have discussed about the topic of impacts of wastewaters or effects of wastewaters. यानी वेस्ट वाटर से कौन कौन सा इफेक्ट होता है. In certain parts of the world, especially in developing countries, wastewater is pumped directly into the sea or into freshwater bodies without any form of treatment. Without any form of treatments. तो वेस्ट वाटर अपन डायरेक्टली क्या करते पंप से, डायरेक्टली इन द सी और इनटू द फ्रेश वाटर बॉडीज, नदी में डालते पानी इंडस्ट्री का. फिर वो पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है. तो वेस्ट वाटर के कौन कौन से इफेक्ट है? इन अदर पार्ट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, lack of adequate wastewater treatment infrastructure, maintenance, and outdated system heavily compromise wastewater treatment efforts. The effects of this, either treated or partly treated, can be classified as a following. फर्स्ट है वाटर पोल्यूशंस. जो वेस्ट वाटर अपन डायरेक्टली पंप से नदी में डालते, तो जो रिवर का पानी है, नदी का पानी, वो कैसे पॉल्यूटेड हो जाएगा. तो फर्स्ट इफेक्ट कौन सा है? वाटर पोल्यूशंस. फ्रेश वाटर बॉडीज, नदी का पानी कौन सा है, कौन सा रहता है? फ्रेश वाटर्स. फ्रेश वाटर बॉडीज एंड मराइन वाटर्स इनटू विच वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज may be polluted and unsafe for human use. Depending on what its discharge, aquatic life may be harmed. एक्वेटिक लाइफ में भी, हाँ, मतलब जो पानी में मछली भी रहती है, मछली जो भी है, तो उसका जो लाइफ कैसा रहेगा? हार्मफुल लाइफ रहेगा. क्योंकि इसके पहले अपन ने देखी कि जो वेस्ट वाटर में क्या क्या रहता है. तो वेस्ट वाटर नदी में डालने से क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा. वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा मतलब एक्वेटिक लाइफ, एक्वा मतलब पानी, तो एक्वेटिक लाइफ में बी हार्म्ड टू. मतलब पानी में जो भी जीव जंतु रहते हैं उसका लाइफ हार्मफुल होगा, क्योंकि वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा. नेक्स्ट फैक्टर है वाटर सिक्योरिटी. देयर इज वाटर scarcity in many places in the world. Wastewater discharge on lands can leach into underground water tables and potentially contaminates aquifers and underground water. If discharged in freshwater bodies, it may render water sources unsustainable for use. Then ecosystem services. All ecosystems are connected and they all ultimately depend on water. Similarly, all water surface and underground is connected. This means careless wastewater discharge can have some serious ripple. One common effect of wastewaters is the eutrophication of freshwater bodies and ocean. If one part of the ecosystem chain is destroyed, it can upset its entire food chains. मतलब वो जो पानी है वो इकोसिस्टम को भी क्या करेगा?
डिस्टर्ब करेगा, मतलब इट कैन अपसेट द एंटायर फूड चेन्स। मतलब जो फूड चेन है, इकोसिस्टम में जो फूड चेन चलती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देखिए यानी इकोसिस्टम में एक के ऊपर एक डिपेंड रहते, जो परिस्थिति की संस्था है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम है, मतलब एक के ऊपर एक डिपेंड करते हैं। तो ये पानी की वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम क्या होंगी, अपडेट होंगे। मीन्स इट कैन बी एंटायर फूड चेन्स upset, then agricultures, fisheries and tourism. Wastewater for irrigation may contains unsuitable chemicals and higher concentration of nutrients needed for crops. This can result in delay and under yielding. Wastewater used for animal farming may also contain harmful things and chemicals dissolved in them. Animals may die and there is chance that human that eat such animals may be harmed. In some places, sewage is discharged directly into the sea. The discharge contains pathogens and harmful dissolved chemicals which can affect fishing in that area. The smell and such behavior does not encourage tourism to that area. मतलब एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड टूरिज्म, इसमें भी इफेक्ट होगा वेस्ट वाटर्स का। देन हेल्थ ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस, इसमें कौन सा इफेक्ट होता है, हेल्थ ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस। वेस्ट वाटर इज बिग हेल्थ and it carries and transport of disease and illness. It is believed that about 2.2 million people die each year from diarrhea. At least 1.8 million children under the years die every year due to water related disease, or one every 20 seconds. वन एवरी 20 सेकंड्स में एक चिल्ड्रन क्या होता है, डाई होता है। मीन्स एटलीस्ट 1.8 मिलियन चिल्ड्रंस अंडर 5 years डाई एवरी ईयर ड्यू टू वाटर रिलेटेड डिसीज। क्या की वजह से, water related disease means diarrhea and other pathogenic disease। मतलब हेल्थ ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन में भी इसका इफेक्ट होता है वेस्ट वाटर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो वेस्ट वाटर्स है, वेस्ट वाटर्स बहुत सारे वाटर में जो भी पैथोजेनिक डिसीज रहते, पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहते, ये बैक्टीरिया क्या करते, बहुत सारे डिसीज स्प्रेड करते, जैसे टाइफाइड हो गया, कैलरा हो गया, डायरिया हो गया। यानी ये जो वेस्ट वाटर्स है, ये वेस्ट वाटर्स वाटर को पॉल्यूटेट करेगा। वाटर को पॉल्यूटेट करेगा मतलब इकोसिस्टम बिगाड़ देंगे। जो पॉपुलेशन हेल्थ है रूरल, उसको भी बिगाड़ देगा। रिवर वाटर इकोसिस्टम है, उसको भी हार्मफुल करेगा।
मतलब जो भी रिवर वाटर्स में, मतलब वाटर इकोसिस्टम में जो भी जीव जंतु है वो क्या होंगे, किल्ड हो जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर यानी हर 20 सेकंड में एक चिल्ड्रन डाई होता है। कई की वजह से, वाटर्स पोल्यूटेड की वजह से। देन प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट्स, फिर इसकी ट्रीटमेंट कौन सी है? ये जो वेस्ट वाटर्स है, अभी तक अपन ने देखे वेस्ट वाटर जनरेट कहाँ से होता है? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल जनरेशंस, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक कौन था कि वेस्ट वाटर्स के इफेक्ट कौन कौन से, वो काय में इफेक्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कौन कौन सा है? वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर्स है, कौन सा वेस्ट वाटर्स? घर से जो पानी निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, एंड इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स। इसकी ट्रीटमेंट कौन सी है? फर्स्ट ट्रीटमेंट है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रीलिमिनरी मतलब फर्स्ट स्टेप। Preliminary treatment removes material that can be easily collected from the raw sewage before the damage or clog the pumps and sewage lines are primary treatments. Clarifiers, trash, tree limbs, leaves, branches. Preliminary treatment includes the following units. Screening. The effluent sewage water passes through a bar screen to remove all largest objects like can, sticks, rags, plastic, etc. स्क्रीन बार मतलब एक पर्दा रहेगा, स्क्रीन बार एक पर्दा रहेगा, जैसे अपन घर में पानी वगैरह छानते हैं, नहीं है तो वैसा उसी टाइप का एक बार रहेगा, स्क्रीन बार बोला जाता है। और स्क्रीन बार के ऊपर से वो वेस्ट वाटर जाएगा, और वेस्ट वाटर में जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स है, रैक्स है, कैन्स है, कैन के टुकड़े हैं, वो क्या होंगे वहाँ पे कलेक्टेड होंगे, मतलब फिल्टर हो जाएगा। कैरिड इन द सीवेज स्ट्रीम्स, दिस इज मोस्ट कॉमनली डन विथ एन ऑटोमेटेड मशीनिकली raked bore screen in modern plants serving large population, whereas in smaller or less modern plants a manually cleaned screen may be used. The racking action of a mechanical bar screen is typically placed according to the accumulation on the bar screen. Thence, the treatment plants and can cause substantial damage and inefficiency in the process. Then grit removals, उसके बाद है grit removals। पहले अपन क्या किए, उसको कलेक्ट किए। क्या कलेक्ट किए? स्क्रीन बार से लीव्स है, झाड़ के पत्ते, ब्रांचेस, जो भी प्लास्टिक, कैन के टुकड़े, इसको क्या किए? कलेक्ट किए, मतलब उसको वेस्ट वाटर को फिल्टर किए। देन्स ग्रिट रिमूवल्स, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट्स में बी इंक्लूडेड अ सैंड और ग्रिट चैनल और चैम्बर्स where the velocity of the incoming sewage is adjusted to allow the settlement of sand, stones and broken glass only and not the organic matter. These particles are removed because they may be damaged pumps and other equipments. Organic matter is expected
not to settle in this chamber since the disposal of the slug becomes difficult for small sanitary sewer system. The grit chambers may not be necessary, but grit removal is desirable at larger plants. Grit chambers comes in three types: horizontal grit chambers, aerated grit chambers and vortex grit chambers. तो इस ग्रिट चैम्बर से अपन जो भी स्टोन है, सैंड है, ब्रोकन ग्लास है, कांच के जो टुकड़े हैं, ये भी क्या करते अपन कलेक्ट कर सकते हैं. देन ग्रीस रिमूवल, फैट एंड ग्रीस. In some larger plants, fat and grease are removed by passing the sewage through a small tank, and skimmers collect the fat floating on the surface. एक टैंक में फिर वो पानी फिर कलेक्ट करेंगे, उसमें से जो भी ग्रीस है वो ग्रीस क्या होगा, फ्लोटिंग ऑन द surface. And many plants, however, use primary with mechanical surface skimmers for fat and grease removal. वो टैंक से क्या होगा, फैट एंड ग्रीस रिमूव हो जाएगा. देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन स्टेज, सीवेज फ्लोज थ्रू और लार्ज टैंक्स. फिर वो टैंक्स में क्या होगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा. वो टैंक में क्या होगा, ग्रीस तो निकल जाएगा. फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे बारिश के मौसम में पानी, जो नदी का पानी है कैसे होता है, कभी कभी नल का भी पानी, नल में जो पानी आता है वो कैसे टर्बिट, गडूळ पाणी त्याला मराठीत आपण म्हणतो गडूळ पाणी. टर्बिट वॉटर मीन्स गडूळ पाणी म्हणतात त्याला. तो एक टर्बिट वाटर जब अपन लेके आते तो उसके वो पानी के नीचे जो टर्बिडिटी दिखती है पानी के नीचे, फिर 1-2 घंटे रख दो उसमें. रखने के बाद तो पानी के नीचे टर्बिडिटी प्रेजेंट रहती है ना, ऊपर में पानी रहेगा. तो जो टर्बिडिटी है वो कौन से प्रोसेस से सेटल हुई, सेडिमेंटेशन प्रोसेस. बारिश के मौसम में वो पानी ला लो और एक टैंक में रख दो, 1-2 घंटे रख दो, तो जो भी सस्पेंडेड उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और पानी कैसे ऊपर हो जाएगा. तो उसको बोलते सेडिमेंटेशन प्रोसेस. देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये हो गई प्राइमरी ट्रीटमेंट. सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज डिजाइन टू substantially degrade the biological contents of the sewage which are derived from human waste, food waste, soap and detergent. The majority of municipal plants treat the settled sewage liquor using aerobic biological process to be effective. Then fixed film or attached growth system includes trickling filters, biotowers and rotating biological contractors. ट्रिकलिंग फिल्टर्स, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में अपन देखे सेडिमेंटेशन प्रोसेस, फिर वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट वही पानी, वो पानी कहाँ जाएगा, ट्रिकलिंग, एक फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर्स एक प्रोसेस होती है ट्रिकलिंग फिल्टर्स. और ट्रिकलिंग फिल्टर से क्या होगा, टिपिकली रिक्वायर्स स्मॉलेस्ट फुटप्रिंट देन सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम्स. देन suspended growth system includes activated slug where the biomass is mixed with the sewage and can be operated in smaller space. Then the final step in the secondary treatment stage is to settle out the biological flock or filter materials through a secondary clarifier and to produce sewage water containing
लो लेवल्स। देन प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट्स। The purpose of tertiary treatment is to provide a final treatment stage to raise the effluent quality before it is discharged to the receiving environment, sea, river, lake, ground, etc. Then tertiary treatment में slug treatment and disposal. Next है, when a liquid slug is produced, further treatment may be required to make it suitable for final disposals. Then primary treatment, secondary treatment and tertiary treatments, agriculture use, and it may then have to be incinerated or disposed of the landfills. फिर ये पानी कहाँ जाएगा? जैसे गार्डन में जाएगा, एग्रीकल्चर में ये पानी क्या हो जाएगा? यूज हो गया। Thank you. Next portion remaining we will take